حیدرآباد میں شہریت ترمیمی قانون کے خلاف آج بائیں بازو پارٹیوں کی جانب سے احتجاجی ریلی کا اعلان کیا گیا تھا۔ ریلی چار مینار سے نمائش میدان تک نکالنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ پولیس کی جانب سے اجازت نہ ملنے پر ریلی کا رخ تبدیل کر کے نمائش میدان سے گن پارک اسمبلی تک ریلی نکالنے کا اعلان کیا گیا۔ چار مینار کے پاس آج صبح سے ہی احتجاجی جمع ہو گئے۔ احتجاج کرنے پر پولیس نے کئی احتجاجیوں کو حراست میں لیا۔ ساؤتھ زون ڈی سی پی اویناش موہنتی نے بتایا کہ ساؤتھ زون پولیس نے کسی بھی قسم کی ریلی یا احتجاج کی اجازت نہیں دی ہے۔ بنا اجازت احتجاج کرنے پر پولیس نے احتجاجیوں کو حراست میں لیا۔ اور وہیں امام صدر اسدالدین اویسی نے شہریت قانون کے خلاف جاری احتجاج کو پرامن رکھنے کی عوام سے اپیل کی ہے۔ انہوں نے احتجاج سے قبل پولیس سے اجازت لینے پر بھی زور دیا ہے۔ ساتھ ہی دارالسلام میں 21 دسمبر کو خاص احتجاجی جلسے کا بھی انعقاد کرنے کا اعلان کیا۔ آپ جو بھی احتجاج کر رہے ہیں اس کو سب سے پہلے پرامن رکھیے اور پولیس سے پرمیشن لیجئے کہ کس وقت آپ شروع کرنا چاہتے ہیں، آپ کا روٹ کیا ہے، اور ہرگز کسی کو بھی ہمارے احتجاج سے تکلیف نہ ہو، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا نہ ہو، ہمارا پورا احتجاج اچھا ہو، کامیاب ہو، پرامن ہو۔ یہ پرامن رکھنا اس کو ہمارے لیے سب سے بڑی یہ کامیابی کا ضامن بنے گا۔ اور کل دارالسلام میں انشاءاللہ مشترکہ مجلس عمل کا بھی ایک اجلاس ہے، اس میں بھی ہم طے کریں گے کہ آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا۔ تو سلام میں ہفتے کے دن جلسہ ہوگا، احتجاجی جلسہ ہوگا شہریت ترمیمی قانون کے اوپر۔ اس میں آپ سے میری گزارش ہے کہ اس میں شرکت کریے، اس جلسے کو کامیاب کریے، اپنے احتجاج کو اس جلسے میں شرکت کر کے درج کروائیے، اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیے کہ اللہ ہمارے اس ملک کے سیکولرزم کو، اس پرامن فضاؤں کو اللہ اور مضبوط کرے۔ شہریت قانون کے خلاف حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں احتجاج کیا گیا۔ پرانے شہر کے علاقے نئے شہر میں بھی عوام نے اپنا احتجاج درج کروایا۔ حیدرآباد کی تفریحی مقامات نیکلس روڈ، پیپلز پلازا پر مختلف تنظیموں کی جانب سے شہریت قانون کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ احتجاجیوں نے متنازع قانون کو منسوخ کرنے کی بھی مانگ کی۔ یہ لوگ یہ آرٹیکل 15 یہ بتاتے ہیں کہ کسی کو مذہب کے نام پر، جات کے نام پر، کسی علاقے کے نام پر، زبان کے نام پر کسی کو جو الگ دیکھنا، اس کا یہ آرٹیکل 15 کا خلاف ہے، رائٹ ٹو ایکوالٹی کا خلاف ہے۔ ہمارا سٹیزنز امینڈمنٹ ایکٹ یہ اس کی خلاف جاتے ہیں، اسی لیے ہم اس کو مخالفت کرتے ہیں۔ کسی مذہب کے نظریے سے نہیں دیکھتے، ہم صرف دستور کی نظر سے دیکھتے ہیں، اسی لیے ہم یہ بولنا چاہتے ہیں یہ خلاف ہے۔ بنانے کا کام ہے، یہ ریاست کا کام ہے، ریاست یہ روک سکتے، جیسا اڑیسہ نے کیا، بنگال نے کیا، اسی طریقے سے ہمارا سرکار اگر یہ کریں گے تو لوگوں کو تسلی ہو جاتا۔ ہم دو بات بتاتے ہیں، یا اس کا امینڈ کرو، سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کو کانسٹیٹیوشن کی دائرے میں اس کو ٹھیک سے اس کو امینڈ کرنا، یا نہیں تو دوسری اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کام یہ بھی کرنا، سٹیزن شپ رجسٹر کے کام روک ڈالو، رد کرو اس کو، تبھی لوگوں کو تھوڑا حوصلہ بڑھتا۔ اور یہ لوگ یہ اتنا ہونے کا وجہ وہی ہے، سب پولیٹیکل پارٹیز نے آج ایک پروٹیسٹ کیے، ہم بھی شامل تھے، ہم لیفٹ سے نہیں ہیں لیکن ہم بھی شامل تھے، اور ہم لوگوں کو پرمیشن نہیں دی، جیسا یہ کا پروگرام کو بھی پرمیشن نہیں ملا، ہمیں اریسٹ کیے تھے، اور 2 بجے ہمیں اریسٹ گرفتار سے چھوڑ دیے، تو اسی وجہ سے ہم یہاں آ پائے۔ آج سی اے کے خلاف جو نیا قانون نکالے، ایکٹ نکالے، یہ بات ہے کہ ہم جو ہے نا، ہم گورنمنٹ سے نہیں ہے، گورنمنٹ ہم سے ہے۔ تو جب پورے انڈیا میں اتنے لاکھوں لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اس چیز سے ناخوش ہے، یہ ایکٹ کے خلاف ہے، تو مودی بی جے پی گورنمنٹ کو جو ہے نا ایکٹ وڈرا کرنا ہی پڑے گا۔ اگر وہ سیکشن 144 امپوز کر دے تو کب تک کریں گے؟ آخر ہم تو آخر تک رکنے والے نہیں ہیں، ہماری آخری سانس تک نہیں رکنے والے ہیں، اور ہمیں اپنی جان سے پیاری آزادی ہے، اور ہمیں ہمارے جان سے پیارا ہمارا ملک ہے، تو ہم تو لڑتے رہیں گے، آخری سانس تک لڑیں گے، وہ چاہے کچھ بھی کر لے۔
शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ हैदराबाद में रैली में शिरकत के लिए जाने वालों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। नामपल्ली नुमाइश मैदान से बाग अहमद तक रैली निकालने की बाएं बाजू की जमातों ने अपील की थी, जिस पर नामपल्ली के करीब पुलिस को बड़े पैमाने पर तैनात किया गया था। पुलिस ने इस रैली में हिस्सा लेने के लिए आने वालों को हिरासत में लिया। पुलिस ने सियासी, समाजी, मजहबी और तलबा तंजीमों के लीडरों को भी हिरासत में लिया और कहा कि ये मुल्क किसी भी मजहब का नहीं है, बल्कि तमाम मजाहिब के मानने वालों का ये मुल्क है। इस मुल्क में पैदा होने वाला हर कोई फ़र्द इस मुल्क का शहरी है। मोदी हुकूमत पर मजहब और ज़ात के नाम पर साजिश करने का एहतजाजियों ने इल्ज़ाम लगाया। कहा कि शहरियत कानून आइन की दफ़ा 14 के ख़िलाफ़ है। इस बिल के ज़रिए मसावात को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। इस कानून के ज़रिए हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को पारा पारा किया जा रहा है। इस कानून को हिंदू मुस्लिम के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। ये कानून मुल्क के ख़िलाफ़ है। और वहीं लेफ्ट पार्टियों की जानिब से शहरियत कानून के खिलाफ हैदराबाद में ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। नुमाइश मैदान में CAA के खिलाफ एहतजाजी रैली में शिरकत करने के लिए आने वाले लीडरों को पुलिस ने हिरासत में लिया। CPI लीडर के नारायणा और तेलंगाना जन समिति लीडर के कोदंडाराम को पुलिस ने नुमाइश मैदान की जानिब बढ़ने नहीं दिया। उन्होंने मौज़म जाही मार्केट के पास सड़क पर धरना दिया। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर दूसरे मुकाम पर मुंतकिल किया। CPI लीडर साबिक रुकन पार्लियामेंट सैयद अजीज पाशा को पुलिस ने नुमाइश मैदान के करीब हिरासत में लिया। अजीज पाशा ने कहा कि पुलिस ने इजाज़त नहीं दी, मगर हम घर पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। उन्होंने कहा कि मुतनाज़ा कानून के खिलाफ एहतजाज की भी इजाज़त नहीं दी जा रही। उन्होंने पुलिस के रवैये की मज़म्मत की। KCR हुकूमत पर पुलिस के जरिए अवाम के जमहूरी हक़ को दबाने का भी इल्ज़ाम लगाया। తప్పనిసరిగా ఈ విషయంలో మేము పెద్ద ఉద్యమం చేస్తాము. ఉద్యమం చేసి ఎట్లయినా ఈ గవర్నమెంట్ और हैदराबाद के इलाके नामपल्ली नुमाइश मैदान पर लेफ्ट पार्टियों की जानिब से रैली में शिरकत के लिए आने वालों को पुलिस ने नुमाइश मैदान गेट के पास ही हिरासत में ले लिया। जमात इस्लामी तेलंगाना और उड़ीसा के सदर हामिद मोहम्मद खान को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर नामपल्ली पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। पुलिस ने हामिद मोहम्मद खान के 50 से ज़ायद हामियों को भी हिरासत में लिया। हामिद मोहम्मद खान ने पुलिस कार्रवाई की सख्त मजम्मत की। उन्होंने तेलंगाना के वज़ीर आला KCR से मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी की तरह इस रैली को लीड करने की मांग की। रैली थी और जितने लोग वहाँ जमा हुए थे वो हिंदुस्तानी शहरी थे, भारतीय शहरी थे। आर्टिकल 19 के मुताबिक कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो प्रोटेस्ट करने का, आवाज़ उठाने का, आवाज़ बुलंद करने का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात का हक़ देता है। फिर ये जो गैर इंसानी किस्म का कानून मंजूर किया गया है, जिसमें इंसानों और इंसानों के दरमियान में तफरीक़ की गई है, मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान में तफरीक़ की गई है, हिंदुओं और हिंदुओं के दरमियान में तफरीक़ की गई है। जब आप बांग्लादेश से आए हुए हिंदुओं को शहरियत देते हैं तो आप श्रीलंका से आए हुए हिंदुओं को शहरियत क्यों नहीं देते? इसलिए नहीं देते कि बांग्लादेश से आए हुए हिंदू बीजेपी को वोट देंगे और श्रीलंका से आए हुए हिंदू बीजेपी को वोट नहीं देंगे, बल्कि वो DMK को वोट देंगे। आप वोट देने वाले हिंदू और वोट नहीं देने वाले हिंदू के दरमियान में भी फ़र्क कर रहे हैं। इस तरह का राज हरगिज़ नहीं चलेगा। तो हम इस वक्त स्टेट गवर्नमेंट से कहते हैं कि जिस तरह ममता बनर्जी रोड पर आईं और उन्होंने रैली को लीड किया, उसी तरह KCR साहब वो भवन से निकले, प्रगति भवन से, और ये जो मॉब इस वक्त बेचैन है उसको वो लीड करें। और यहाँ जो पुलिस के ज़रिए से दबाने की, कुचल देने की जो कोशिशें हो रही हैं, ये आपकी बदनामी होगी इसके अंदर। यहाँ पर जिद्दोजहद कर रहे हैं, उनको हाईलाइट भी कीजिए, उनको लीड आप खुद कीजिए उनको। इंशाअल्लाह हम बहुत पुरअमन रहेंगे,
कोई प्रॉपर्टी को हम लॉस होने नहीं देंगे, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ की हिफाजत हम खुद करेंगे और फिर किसी भी सूरत में इस मूवमेंट को वायलेंट होने नहीं देंगे। जिस तरह हमने तेलंगाना मूवमेंट को वायलेंट होने नहीं दिया, उसी तरह हम इस मूवमेंट को भी वायलेंट होने नहीं देंगे। मौलाना तारिक कादरी एडवोकेट और उनके हामियों को भी पुलिस ने नुमाइश मैदान गेट के पास से हिरासत में लिया। पुलिस ने तारिक कादरी और उनके हामियों को शहरियत कानून के खिलाफ नुमाइश मैदान में मुनक़िद होने वाली रैली में शिरकत नहीं करने दिया। उन्होंने हुकूमत और पुलिस के इस इक़दाम की सख्त मज़म्मत की। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराने के लिए मर्द और ख़वातीन के साथ साथ बुजुर्ग लोग भी नुमाइश मैदान पहुंचे थे। पुलिस ने बुजुर्ग अफराद को भी जलसेगाह में दाखिल नहीं होने दिया। ज़बरदस्ती इन बुजुर्गों को गाड़ी में बिठाकर दूसरे मुकाम पर मुंतकिल किया और पुलिस के इस रवैये पर हर कोई हैरान रहा। और वहीं नुमाइश मैदान पर बड़े पैमाने पर ख़वातीन और लड़कियों ने भी शहरियत कानून के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज करवाया और पुलिस ने एहतजाजी लड़कियों और ख़वातीन को आगे बढ़ने नहीं दिया। बुर्कापोश मुस्लिम लड़कियों और ख़वातीन को भी हिरासत में ले लिया गया। वाज़ेह रहे कि मुल्क भर में शहरियत कानून के खिलाफ लेफ्ट पार्टियों ने एहतजाज की कॉल दी है। पुलिस ने एहतजाज की इजाज़त नहीं दी, मगर हज़ारों अफराद अपना एहतजाज दर्ज करवाने के लिए नुमाइश मैदान पहुँचे। हैदराबाद के मसरूफ़ तरीन इलाके मौज़म जाही मार्केट पर भी मुख्तलिफ पार्टियों के कारकुनों को पुलिस ने नुमाइश मैदान की जानिब बढ़ने नहीं दिया। एहतजाजियों ने वहीं सड़क पर धरना दिया। पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेकर दूसरे मुकाम पर मुंतकिल किया। एहतजाजियों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। मौज़म जाही मार्केट पर एहतजाज के दौरान ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम हो गया। काफ़ी जद्दोजहद के बाद ट्रैफिक निज़ाम को बहाल किया जा सका। वहीं सीएए कानून के खिलाफ हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तलबा ने मरकज़ की जानिब से पेश करदा कानून के खिलाफ नाराज़गी जाहिर की। सीएए कानून को वापस लेने का मरकज़ से मुतालबा किया गया। इस दौरान सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की क़यादत में धरना दिया गया। एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर जाने पर पुलिस ने एहतजाजी तलबा को गिरफ्तार करते हुए उन्हें गचीबावली पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। पुलिस स्टेशन में तलबा ने अपना एहतजाज दर्ज करवाया। हैदराबाद के कदीम तालीमी इदारे अनवारुल उलूम के तलबा ने भी शहरियत तरमीमी कानून और NRC के खिलाफ एहतजाज किया। तलबा ने कॉलेज से बड़ी रैली निकाली। कानून को वापस लेने की मांग की गई। इस मौके पर पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया था। तालिबात ने कॉलेज के अहाते में नारेबाजी की और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ हैदराबाद के इलाके कुकटपल्ली में NSUI की जानिब से एहतजाज किया गया। इस दौरान UMCC कमानता बस स्टॉप तक बड़ी रैली निकाली गई। इसमें सैकड़ों NSUI कारकुनों ने हिस्सा लिया। रैली में शरीक अफराद ने NRC और CAA को वापस लेने का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की। एहतजाजी NSUI तलबा ने जामिया में तलबा पर हुए हमले की सख्त मजम्मत की और दिल्ली पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। NSUI का कहना है कि CAA पूरी तरह से जमहूरियत के खिलाफ है। इस कानून को वापस लेने तक वो एहतजाज करते रहेंगे।
वहीं MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने CAA की मुखालिफत की है। उन्होंने इस कानून को आइन के खिलाफ करार दिया है और इस कानून पर मुसलमानों में पाई जाने वाली गैर यकीनी की कैफियत को भी दुरुस्त करार दिया है। सरकार ने शहरियत तरमीमी क़ानून को जो बनाया है, जो हमारे दस्तूर, हमारी आइन, हमारे संविधान के ख़िलाफ़ है और साथ ही साथ ये मज़हब की बुनियाद पर मुल्क को बांटने की कोशिश की जा रही है। और ये शहरियत क़ानून को हमको बहुत ज़रूरी है कि NRC के साथ इसको देखें। और जब मुल्कीर पैमाने पर जिसका वादा BJP की हुकूमत ने किया है कि NRC पूरे मुल्क में लागू किया जाएगा, तो इससे मुसलमानों में जो एक गैर यकीनी कैफियत है और होना भी चाहिए, इसलिए कि ये जो क़ानून आज बना है, शहरियत का जो क़ानून, अगर किसी मुसलमान का नाम NRC में नहीं आएगा तो उनको हिंदुस्तान की शहरियत नहीं मिलेगी। और जो गैर मुस्लिम है उनको ये सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट के तहत उनको मिल जाएगा और इसके बड़े बुरे असरात मुरतब होने वाले हैं मुल्क की सेकुलरिज़म पर, मुल्क के फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। और अब खास बात आंध्र प्रदेश की खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ मुकामात पर भी CAA के खिलाफ एहतजाज। विजयवाड़ा और तिरुपति में भी की गई शहरियत कानून की सख्ती से मुखालफत। CAA एक्ट पर कन्नूर और अदूनी में भी एहतजाज। एक्ट के खिलाफ रैलियों का भी इनेकाद। कन्नूर में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से बादे नमाज जुमा एहतजाजी रैली का ऐलान। शहरियत कानून और NRC के खिलाफ एहतजाज में शामिल होने की अवाम से की गई अपील। आंध्र प्रदेश के 3 सदर मुकाम बनाने की मुखालिफत भी जारी। अमरावती के 29 देहात में एहतजाज। किसानों ने मुनक्किद किया रास्ता रोको प्रोग्राम। और विशाखापट्टनम पुलिस ने गांजा स्मगलिंग की टोली को किया बेनकाब। 424 किलो गांजा जब्त। 5 लोगों को किया गया गिरफ्तार। और अब खबरों की तफसील। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज देखा जा रहा है। विजयवाड़ा में भी बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। लेनिन सेंटर धरना चौक पर CPI CPIM की जानिब से एहतजाज किया गया, जिसमें रामकृष्णा मधु के अलावा सैकड़ों हिंदू मुस्लिम लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर रामकृष्णा ने कहा कि CAA आर्टिकल 14, 15 और 25 के खिलाफ है। हम इस कानून की मुखालफत करते हैं। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली की जामे यूनिवर्सिटी में तलबा पर हुए हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि BJP दौरे हुकूमत में जमहूरियत खतरे में पड़ गई है। The BJP NDA government is dividing the country in the name of the NRC and also CAA. It is a betrayal to the constitution. The constitutional spirit is betrayed by the BJP government. The NRC, is it necessary? The BJP government is trying to divert the people. The economic recession is there. The onion and other price rise is there. So the government NDA is trying to divert the people's mood. So we will oppose on the, it is the issue of the not only the minorities, it is issue of the constitutional spirit. I demand the Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, at least now to withdraw this amendment bill and save the democracy and save the constitution. Till then we will fight against till end. We on behalf of left parties seeking the support of secular parties and democratic parties. Thereby we are demanding the central government to withdraw this brutal act, and also we are condemning the lathi charge of the central government on innocent students of Jamia Millia University and the other students all over India.
I personally oppose this NRC. Discriminating a religion in this country is not as per the spirit of democracy, not as per the spirit of constitution. So I believe everyone is equal in this country. The beauty of this country is equality. Equality to all, justice to all. CAB, I do not support NRC, I do not support CAA. I stand with my principles of equality to all. सब मिलकर एक ही मुतालिबा करते हैं कि किसी भी सूरत हाल में ये जो एक्ट है, इस एक्ट को जो है निकाल देना चाहिए, इस एक्ट को जो है रद्द करना चाहिए और आंध्र प्रदेश में जनाब वाई एस जगन मोहन रेड्डी साहब जो है इस एक्ट को, इसे CAA हो या NRC हो, इसको आंध्र प्रदेश में इम्प्लीमेंट हम हरगिज़ भी नहीं करेंगे। इस बात का जो है हम लोग मुतालिबा करते हैं। से अदूनी के MRO दफ्तर के रूबरू शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाज में मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। मरकजी हुकूमत के खिलाफ यहाँ नारेबाजी की गई। इस मौके पर जॉइंट एक्शन कमेटी ने हुकूमत से शहरियत तरमीमी कानून को मनसूख करने तक अपना एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया। అసలుల్లా గారు ఉరితాడు ముట్టాడినప్పుడు భిన్నత్వంలో ఏకత్వంగా అందరూ ఈరోజు కొన్ని చట్టాలు మార్పు దయచేసి అనేక ఏం బాధ లేదు పాస్పోర్ట్ చెప్పడం సర్టిఫికేట్ ఎక్కడ అంటే ఇక్కడ పరిపాలన ఎంత దుర్మార్గంగా ఉందో చెప్పనవసరం లేదు. మిత్రులారా అత్యంత ఎదుర్కొంటూ బయటకు వచ్చానని చెప్తున్నా నరేంద్ర మోడీ గారు ముఖ్యమంత్రి అంటే కొన్ని వందల మంది ప్రాణాలు బలిస్తున్నాడు. అంతే చూసి చాలా విషయాలు చెప్పారు. నేను ఎక్కువ సబ్జెక్టులు పోను. బీజేపీ పార్టీ యొక్క పాత్ర మీకు ఎవరికి लेफ्ट जानिब से करनूल कलेक्ट्रेट के रूबरू शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। रैली में मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। हुकूमत से कानून को मनसूख करने का यहाँ मुतालबा किया गया, वरना मुल्क भर में बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म करने का इंतबाह भी दिया गया। दो बिल जो पास किए हुए हैं पार्लियामेंट में, ये इंसानियत के खिलाफ है। ये तो जो है ना हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों माइनॉरिटीज के खिलाफ है और इंसानियत के खिलाफ भी है, क्योंकि ये बिल जो है ना माइनॉरिटीज का गला घोटने वाला बिल है। इसलिए जो है ना हम इसके जो है कंडम करते हैं। सब मिलकर इस बिल को खत्म करना चाहिए। बीजेपी हुकूमत आज हिंदुस्तान के अंदर सब में बांटना, तफरका पैदा करना चाहती है। हिंदू मुसलमानों में बांट कर, हिंदू मुसलमानों में झगड़ा पैदा करके मुसलमानों का गला घोटना चाहती है। हमारा सबका मकसद एक ही है कि इंसानियत के खिलाफ, इंसानों के दरमियान में नफरत की दीवार पैदा करके, इंसानों के दरमियान में झगड़े पैदा करके, उनके जिंदगियों से खेलना, उनकी लाशों पर हुकूमत करने के लिए ये जो नए बिल लाए हैं, इस बिल को खत्म करने के मकसद से हम सब यहाँ जमा हुए हैं। और ये बिल ये कोई मामूली बिल नहीं है, सिर्फ मुसलमान कह रहे हैं नहीं, बल्कि हमारे बाद उनका नंबर है क्रिश्चियंस का, उसके अंदर दलित का नंबर है। सिर्फ बड़े जाते जो कहलाते हैं वो हुकूमत करेंगे और बाकी के जितने भी मजहब हैं और जितने भी कैस्टा हैं वो तो गुलाम की सरकार जिंदगी गुजारना पड़ेगा। वहीं कल्पा में भी शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज देखा गया। बाएं बाजू जमातों की जानिब से कलेक्ट्रेट पर धरना दिया गया। इसमें CPI, CPM के अलावा अवामी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। प्ले कार्ड थामे CAA के खिलाफ यहाँ एहतजाज किया गया। इस दौरान मरकज के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। CPI जिला सेक्रेटरी ईश्वरिया ने कहा कि मोदी और अमित शाह मुल्क की आवाम को जात पात के नाम पर तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत जमहूरियत को नुकसान पहुँचाने का काम कर रही है। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ तिरुपति में भी एहतजाज देखा गया। इस एहतजाज में मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिम मर्द व ख़वातीन ने हिस्सा लिया। इस दौरान शहरियत तरमीमी कानून को वापस लेने का मरकज से मुतालबा किया गया। एहतजाज में शरीक लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। तिरुपति बस स्टैंड के अहाते में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जानिब से एहतजाज मुनक़्क़िद किया गया। इसको बाएं बाजू जमातों की भी तायद हासिल रही। एहतजाजी लीडरों ने इस मौके पर कहा कि बीजेपी मुल्क को तकसीम करने की कोशिश कर रही है। इसी के खिलाफ हर शहरी को एहतजाज करने की जरूरत है। करनूल में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ 20 दिसंबर को पुरअमन तरीके से अज़ीमुश्शान रैली का इनेकाद किया जाएगा। काजी अब्दुलसलाम ने इस मौके पर जलसे की तैयारियों के सिलसिले में उम्र अरबी हाई स्कूल ग्राउंड का जायजा लिया। उन्होंने पुरअमन रैली में शिरकत करने की
عوام سے اپیل کی ہے۔ ایک جو بل قانون بنائی ہے اس بل کو رد کرنے کے لیے، قانون پر دباؤ ڈالنے کے لیے سیکولر سوچ کے جتنے بھی لوگ ہیں سارے پہنچ جائیں۔ خاص طور پر مسلمانوں کو جمعے کا انتظام کیا گیا ہے اور پیسفلی اطمینان کے ساتھ بغیر کسی شور شرابے کے سارے مسلمان اور سیکولر قسم کے غیر مسلم بھی مل کر اسلامیہ عربی کالج گراؤنڈ سے لے کر کلکٹریٹ تک ایک ریلی نکالیں گے۔ عربی کالج گراؤنڈ میں نماز ادا کی جائے گی اور اس کے بعد بہت بڑا جلوس یہاں کے JAC کی جانب سے جو نکلنے والا ہے اس کی کامیابی کے لیے اور یہاں کی پلاننگ کہاں پر نماز پڑھنا، کہاں پر پارکنگ رکھنا، یہ ساری پلاننگ کے لیے ہم سارے پولیٹیکل پارٹیز اور آرگنائزیشنز یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ میں کرنول کی عوام سے پرخلوص یہ درخواست کرتا ہوں، اسپیشلی نوجوانوں سے، کہ اب ظلم بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اب یہاں پر ہماری شناخت کو مٹانے کی بات کی جا رہی ہے، اس لیے ہر کوئی اپنی ذمہ داری سمجھ کر اسلامیہ عربی کالج گراؤنڈ کو 1 بجے باوضو 20 تاریخ کو جمعہ کے دن پہنچ جائیں۔ پرامن ایک احتجاج ہوگا، ایک ریلی ہوگی۔ خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آداب۔